Hello students, welcome back to the next lecture of class plus 2 subject chemistry, and the chapter we were doing is solutions. And in the previous lecture we have learned about osmotic pressure and what is osmosis, and we have also learned about the experimental determination of osmotic pressure by Hartley's and Berkeley's method, right? And what is semi-permeable membrane and what are its examples. So we have all learned about this. Now we have also learned about that the limited how to find the molecular mass by knowing the osmotic pressure of the solution. Okay, right? Now what are the today's topic is what are the limitations of osmometric method in molecular mass determination. The first limitation is the molecular mass of only non-volatile solute can be determined by osmometric method. The first limitation is only it is used in determining the molecular mass of the solution in which the solute is non-volatile only, right? Second one is solution of an unknown compound may be very dilute. The concentration should not be greater than 5%. So याद रखना, the concentration should not be greater than 5%. If the concentration is greater than 5%, then it is not determined accurately the molecular mass of solution, sorry solute. ठीक है, मतलब it means that the solution must be very dilute. Concentration should not be greater than 5%, right? And the third one is solute molecules, we can say, should not undergo association or dissociation in the solution. मतलब अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो गई तो मॉलिक्यूलर मास जो है सॉल्यूट का वो प्रॉपर्ली डिटरमिन नहीं होगा. ठीक है. So these are the limitations for the osmometric method in molecular mass determination. We have to keep in mind these limitations. Only then we can find the molecular mass of the solute properly or accurately, right? And what are the advantages over other methods? And it is also advantageous. This method is also advantageous over some other methods. The first one is we can say in spite of certain limitations होने के बावजूद भी बेटा, this method is very useful and suitable for the determination of molecular mass of macromolecules and polymers. Macromolecules और polymers जो हैं वो polymers are also macromolecules, proteins are also macromolecules. इनके molecular mass find करने के लिए this method is very much suitable. Like proteins, insulin, hemoglobin, the hormones हो गए, they all are proteins, they all are macromolecules. This advantage of osmotic pressure method can be explained as, अगर हम इसको explain करें, it is used to calculate the osmotic pressure, molecular mass of the macromolecules. So we will explain it like as the elevation in boiling point cannot be, that is delta TB, cannot be used because at high temperature denaturation of polymeric biomolecules like proteins takes place. याद रखना, हम प्रोटीन्स का और मैक्रोमोलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट कैन नॉट बी यूज्ड. व्हाई? बिकॉज एट हाई टेम्परेचर्स denaturation of proteins occurs. At high temperatures denaturation of proteins occurs. उनकी शेप चेंज हो जाती है, उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाती है एट हाई टेम्परेचर्स. ठीक है, कैसे होता है बताऊंगा, आगे चैप्टर करेंगे. नेक्स्ट लास्ट में हम बायोमोलिक्यूल्स उसमें आएगा. ठीक है,
क्लियर? अगर किसी को पढ़ना हो किसी ने तो उस चैप्टर में पढ़ सकता है, फॉर जस्ट फॉर नॉलेज। Second one is solution of polymers show very small magnitude of elevation and boiling point and depression and freezing point। बेटा डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट प्रोटीन्स के या पॉलीमर्स के केस में बहुत कम होता है, विच इज़ प्रैक्टिकली वेरी डिफिकल्ट टू मेजर। ठीक है, सो पर ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बहुत कैन बी इजीली डिटर्मिन, वो इजीली डिटर्मिन हो जाता है बिकॉज हम उसको मेजर कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली विद द हेल्प ऑफ प्रेशर गेज, जो हमने कल किया था एक्सपेरिमेंट हर्टली एंड बर्गले एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, सो द एलिवेशन इन मतलब डेल्टा टी बी एंड डेल्टा टी एफ is very difficult to determine in these cases। ठीक है, clear? So these are the advantages, main disadvantages, main one advantage is there that it is used osmotic pressure, the osmometric method for molecular the mass determination is used in the case of polymers और मैक्रोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, हार्मोन्स, विटामिन्स, ये सारा इसमें जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, इंसुलिन है, हीमोग्लोबिन है, ठीक है, ये सारे। नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। वन इज आइसोटोनिक, सेकंड वन इज हाइपरटोनिक, थर्ड वन इज हाइपोटोनिक। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। Iso means same, iso means same and tonic means concentration. The solutions have same osmotic pressure are called isotonic solutions। The solutions having same osmotic pressure beta are known as isotonic or isoosmotic solutions। And suppose we have a U-shaped tube and it is having a semi-permeable membrane inside it, in the middle of it, and it is having two types of liquids along two sides. Suppose this is A side, this is side B. Okay, suppose this is having the osmotic pressure or concentration of S1, this is having osmotic concentration of S2, right? And if they both will be isotonic, then there will be no net flow of solution takes place or solvent takes place। तो कभी भी कोई सॉल्वेंट फ्लो नहीं करेगा, ना इधर से इधर ना इधर से इधर, क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन क्या है बेटा, सेम है। अगर दोनों की कंसंट्रेशन सेम होगी तो ऑब्वियसली नेट फ्लो चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि ऑस्मोसिस तभी होता है या सॉल्वेंट तभी मूव करता है अगर दो सॉल्यूशन में डिफरेंस है कंसंट्रेशन में। अगर दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सेम है देन देयर विल बी नो नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसलिए जब हमें कोई इंजेक्शन लगता है ना, आपको बता दूं नॉलेज के लिए, जब हमें कोई इंजेक्शन लगता है उसको बोलते हैं आईवी इंजेक्शन। आईवी इज इंट्रावेनस, जो वेन्स के अंदर लगता है जो इंजेक्शन। ठीक है, जो बाजू पे लगता है, जो वेन्स के अंदर लगता है, ग्लूकोज लगाते हैं, वो नर्व ढूंढ के फिर लगाते हैं। ठीक है, जो उसकी कंसंट्रेशन है ना, जो इंजेक्शन की कंसंट्रेशन, इंजेक्शन में जो मेडिसिन है उसकी कंसंट्रेशन, जो ग्लूकोज लगता है हमें उसकी कंसंट्रेशन जो है वो हमारे ब्लड की कंसंट्रेशन के साथ बिल्कुल मैच करती है। इट शुड बी आइसोटोनिक विद द कंसंट्रेशन ऑफ या विद आवर ब्लड, सॉरी सिंपल। क्यों? अगर उसकी कंसंट्रेशन हमारे ब्लड की कंसंट्रेशन के साथ सेम होगी ना, तो हमारे सेल्स में से ना तो सॉल्वेंट बाहर आएगा ना ही उनमें अंदर जाएगा। क्यों? अगर सपोज हमारे जो हमने इंजेक्शन लिया उसकी कंसंट्रेशन हमारे ब्लड की कंसंट्रेशन से कम है, मतलब वो ज़्यादा डाइल्यूट है, तो क्या होगा, तो उसमें से जो पानी है वो सारा अपने सेल्स के अंदर चला जाएगा, ब्लड सेल के अंदर जाएगा और सेल्स स्वेलो हो जाएंगे, स्वेलो होने के बाद बर्स्ट हो जाएंगे, तो हमारे सेल्स डैमेज हो जाएंगे। या फिर अगर जो हमने इंजेक्शन लिया उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है हमारे ब्लड से, तो हमारा ब्लड डाइल्यूट हो गया, वो मेडिसिन कौन सी होगी, कंसंट्रेटेड हो गई। और हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम डाइल्यूट टू द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन।
तो हमारे सेल्स में से जितना भी पानी है एक्स्ट्रा वाटर वो सारा बाहर निकल जाएगा और सेल्स क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे और हम और बीमार हो जाएंगे और वीक हो जाएंगे। समझे मेरी बात? इसलिए जो भी हम इंजेक्शन लेते हैं, जो भी मेडिसिन हम इंट्रावेनस वेन से थ्रू लेते हैं बेटा, एंड वो हमेशा क्या होती है हमारे पास, सॉरी, इट इज़ ऑलवेज आइसोटोनिक विद आवर ब्लड, आइसोटोनिक विद आवर ब्लड। ये याद रखना प्लीज, इंपॉर्टेंट है बहुत। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, दिस इज ऑल अबाउट आइसोटोनिक। नेक्स्ट वन इज, देयर आर टू मोर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। If those two solutions have different osmotic pressure, then one with greater osmotic pressure is known as hypertonic and the lower osmotic pressure is known as hypotonic. पता ही हमें वैसे भी नाम से पता लग रहा है, hyper means high, hypo means low or less. The solution with greater or high osmotic pressure it is known as hypertonic solution. The solution with low or lesser osmotic pressure is known as hypotonic solution. Clear? Okay. Now, this comparison beta is given by D. Veris, scientist, and when two solutions of different osmotic pressure are separated using semi-permeable membrane, then the solvent molecules pass through the semi-permeable membrane from the hypertonic to the hypotonic. हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाता है ना हमेशा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, तो हमेशा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाइपर टू हाइपोटोनिक ही ट्रांसफर होंगे हर बार। और ये याद रखना कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्योंकि हाइपरटोनिक से हाइपोटोनिक की तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं, तो हमने ये भी किया हुआ है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हमेशा डाइल्यूट सोल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ ही हमेशा ट्रांसफ़र होते हैं। तो इसका मतलब जितने भी डाइल्यूट सोल्यूशन होंगे, जिसमें सॉल्यूट कम होगा पर सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, दे आर नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। बट जिन सॉल्यूशंस में सॉल्यूट ज़्यादा होगा सॉल्वेंट कम होगा, विच इज़ मोर कंसंट्रेटेड, दे आर नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। याद रखना प्लीज़। तो बेटा ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस हैं वो हाइपोटोनिक होते हैं, जो कंसंट्रेटेड होते हैं वो होते हैं हमारे पास हाइपोटोनिक। क्योंकि बच्चों को मोस्टली ये दिक्कत आती है याद करने में कि कौन सा हाइपर है कौन सा हाइपो है। जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस हैं वो होंगे हमेशा हाइपोटोनिक, जो कंसंट्रेटेड होंगे वो होंगे हमेशा हाइपोटोनिक। ठीक है, और हमेशा हाइपोटोनिक से ही हाइपोटोनिक की तरफ ही क्यों सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हाइपोटोनिक का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो डाइल्यूट है। अगर वो डाइल्यूट है तो उसमें सॉल्वेंट ज़्यादा है, अगर उनमें सॉल्वेंट ज़्यादा है तो क्या होगा, तो हमेशा उसके वेपर ज़्यादा बनेंगे और वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। पर हाइपो में सोल्यूशन कौन सा है, कंसनट्रेटेड है, तो उसमें ऑब्वियसली सॉल्वेंट कम होगा तो उसके वेपर्स कम बनेंगे, तो इट इज़ हैविंग अ लेसर वेपर प्रेशर एज कम्पेयर टू दिस। सो द movement of solvent molecules is always from hypertonic to the hypotonic. And the second reason behind this is concentration of solvent will be greater in hypertonic solution. ठीक है, दो रीज़न है जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो या फिर हम बोल सकते हैं द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ऑलवेज अकर फ्रॉम हाइपरटोनिक टू हाइपोटोनिक। The first reason behind it is the vapor pressure of hypertonic solution will be more and the concentration of solvent in hypertonic is more as compared to in hypotonic. तो ये याद रखना, हाइपर हाइपो में बच्चे हर बार कन्फ्यूजन कोई ना कोई करते हैं, तो प्लीज़ डू नॉट गेट कन्फ्यूज इन इट। द नेक्स्ट टॉपिक इज osmosis is of two types, exoosmosis. Second one is we have endosmosis. Endoosmosis and exoosmosis. We have these two types of osmosis. Now, suppose we have a plant cell. It is placed in a hypotonic solution. Suppose एक solution है हमारे पास, उसमें हमने प्लांट सेल रखा हुआ है
the solution is hypotonic, suppose. Now what will happen, then the water molecules will enter into the cell and the cell will swell up, right? तो water molecules क्या होंगे, प्लांट के अंदर जाएंगे and the cell will swell up, right? तो वो swell हो जाएगा, फूल जाएगा, and the phenomenon is known as endoosmosis. It is known as endoosmosis, okay? एंड स्वेलिंग और रप्चरिंग ऑफ ब्लड सेल्स, अगर स्वेल होने के बाद वो रप्चर भी हो गया, स्वेलिंग होना या रप्चर होना ब्लड सेल्स का ड्यू टू एंडोस्मोसिस इज नोन एज हीमोलाइसिस. क्लियर? एंड नाउ वी हैव एंडोस्मोसिस. सपोज वी हैव अगेन अ प्लांट सेल प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस, देन व्हाट विल हैपन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हमने प्लांट सेल को रखा हुआ है, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, if the plant cell is placed in hypertonic solution then the water molecules will move out of the cell and it will get shrink up, just wait. Clear? Now hypertonic में क्या होगा, the cell placed in a hypertonic solution, the water molecules will move out of the cell and what will happen, it will get shrink and it is known as endosmosis. Because of endosmosis हुआ, when the cells shrink the is known and due to the endosmosis it is known as plasmolysis, okay? The process of exosmosis in animal cell is known as, and the process is known as exosmosis की बात कर रहा हूँ मैं, इसको सॉरी मैं गलत लिख गया ना, ये यहाँ पे आएगा एंडो, सॉरी यहाँ पे आएगा बेटा एक्सोस्मोसिस, ठीक है? तो एक्सोस्मोसिस और एंडोस्मोसिस, सॉरी, तो एंडोस्मोसिस है अंदर जाना, क्योंकि ऑब्वियसली हाइपरटोनिक अंदर जाएगा, तो वो क्या आएगा बेटा हमारे पास, वी हैव दिस सॉल्यूशन, ठीक है? तो हाइपरटोनिक लेंगे तो एंडोस्मोसिस होगा एंड दिस इज नोन एज हेमोलाइसिस, स्वेल अप होगा तो हेमोलाइसिस बोलेंगे, ये सही था, मैंने वो हेडिंग गलत लिख दिया, मैंने एग्जांपल गलत दे दी, सॉरी, जस्ट ध्यान रखना. अभी मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर प्लांट सेल है उसको रखा है हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, देन व्हाट विल हैपन, एक्सोस्मोसिस अकर्स बिकॉज द वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द प्लांट सेल विल कम आउट एंड इट विल श्रिंक एंड दिस इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस. जो श्रिंक हो जाएगा उसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस. एंड एक्सोस्मोसिस इज ऑफ प्लांट सेल is also known as crenation. CRENATION. Exosmosis of plant cell is also known as crenation. Okay, right? And we did one more activity in the 9th class also about the osmosis. That we have to, if we take some eggs, 2 eggs, suppose we take 2 eggs and place them in dilute solution of HCl. Take 2 eggs and place them in dilute solution of HCl. Then what will happen? The hard shell is removed by dipping the eggs in the dilute HCl solution, and the shell remained on the eggs will act as a semi-permeable membrane. And then what will we have to do? We will take 2 beakers and place and place the 2 given eggs in these 2 beakers. In 1 beaker, suppose we are adding water only, and in second beaker, if we are suppose we are adding a saturated NaCl solution. Now what will happen? The water placed in egg placed in the water will swells up, and the egg placed in saturated solution of NaCl will shrink. तो याद रखना ये, this is known as endo and exo. This is endo, this is exosmosis. ठीक है? Clear? Activity you can also do it at home with the eggs only. Now, osmosis beta also occurs in our day-to-day life.
This is now I am explaining it to you verbally only. I am not writing it and there. If we eat large amount of salt, we suffer from edema. In edema क्या होता है, salt ज़्यादा हो जाएगा तो the tissue become puffy. The high salt concentration increases osmotic pressure and it results from the greater inflow of water in the cells and hence water retention in the tissue and intercellular space takes place. Thus the tissue becomes puffy and medically it is referred as edema. वो होता है edema अगर हम salt ज़्यादा लेते हैं. डेड बॉडीज अगर वो पानी में पड़ी रहें तो वो क्या होती है बेटा, स्वेल हो जाते हैं. क्यों? पानी में पड़ी हैं तो पानी टिश्यू से अंदर चला जाएगा और बॉडी स्वेल हो जाएगी. पेशेंट्स हैं जिनको टॉन्सिल्स हैं आर एडवाइज वार्म सलाइन गागल, गर्म पानी के मतलब नमकीन पानी से गागल्स करने हैं. क्यों? क्योंकि टॉन्सिल्स उसमें जो पानी भरा हुआ है वो सारा बाहर आ जाएगा. बाहर से पानी नमक वाला डाला है, अंदर वाला पानी सारा बाहर आ जाएगा तो वो श्रिंक हो गई, टॉन्सिल्स कम हो जाएंगे. ठीक है, क्लियर. एंड एक्सोस्मोसिस हो जाएगा. एंड सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स ऑफ एनिमल बॉडी पार्ट्स ऑफ एनिमल बॉडी टेक्स प्लेस ड्यू टू ऑस्मोसिस. ठीक है, ये तो. नेक्स्ट वन इज ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर अपवर्ड फ्रॉम सॉइल टू टॉप ऑफ द ट्रीज और प्लांट्स. ये भी ऑस्मोसिस थ्रू होगा. And it helps in the germination of seeds also. To seeds absorb water from salt with the help of from soil with the help of osmosis only. And salt and sugar act as a preservative in pickles. This is because of only osmosis. Because salt और sugar डालेंगे pickles में तो वो पानी बाहर निकल आएगा उनका and they will shrink and वो बैक्टीरिया से क्या होगा, इफेक्ट नहीं होंगे ज़्यादा जल्दी. एंड जो बैक्टीरिया होगा वो वाटर लॉस कर देगा और वो डेथ हो जाएगी, मर जाएगा वो वहाँ पे. नेक्स्ट वन वी हैव ड्राई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स गेन ओरिजिनल शेप व्हेन प्लेस इन द वाटर. देखा है हमने ड्राई फ्रूट, हम रेजन होते हैं, रेजन दाख, उनको पानी में डाल दो वो स्वेल हो जाएंगे, ओरिजिनल शेप ले लेंगे. ठीक है. एंड बादाम होते हैं हमारे, आलमंड्स, काजू हैं, कैश्यूज, उनको पानी में डाल दो दे विल टेक ओरिजिनल शेप्स व्हेन बिकॉज दे क्या नाम है, एब्जॉर्ब वाटर when we add them in water. ठीक है. And meat is also preserved in salt. We always see dry fruits are dipped in water before cooking. मतलब beans हो गए, dry fruits हो गए, कुक करने के लिए पहले वाटर में हम उनको क्या करते हैं, डिप करते हैं. Because water molecules enter in the beans and dry fruits to make them porous and hence cooked easily. They can be cooked easily. Okay, clear. And one thing more जो मैंने बताया था आपको, IV इंजेक्शन, इंट्रावेनस इंजेक्शन के बारे में. In intravenous injection बेटा, the aqueous solution of NaCl having concentration, suppose हम एक NaCl की concentration दे रहे हैं, aqueous solution of NaCl having concentration 0.91% W/V, इतना weight by volume होगी, is isotonic with blood. तो वो ब्लड के साथ क्या है, आइसोटोनिक है. तो अगर हम ये कंसंट्रेशन लेंगे इंट्रावेनसली NaCl सोल्यूशन की तो हमें बॉडी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ठीक है. बट नाउ प्लाज्मोलाइसिस होगा, ना ही हेमोलाइसिस होगा, ना ही मतलब सेल्स श्रिंक होंगे, ना ही स्वेल होंगे. बट इफ वी टेक द कंसंट्रेशन लेस देन 0.9% W/V, then the solution is hypotonic. Or if we place hypotonic red blood cells come in contact with hypotonic solution, then endosmosis takes place. And what will happen? The cells will shrink up, swell up, and hemolysis occurs. If greater than 0.9% mass by volume, it becomes hypertonic. Then what will happen? Then it occurs in the presence of exosmosis and plasmolysis occurs. ओके,
तो ये याद रखना प्लीज. This is all about it, osmosis. And next one is we have reverse osmosis. बेटा रिवर्स ऑस्मोसिस हमारे घर में हम यूज़ करते हैं, हमारे बोलते हैं वाटर प्योरीफायर्स, हम उनको आर बोलते हैं, बट एक्चुअली वो आर नहीं होते. आर तो एक प्रोसेस है जिसपे ऊपर वो बेस है, एक्चुअली सारा मैकेनिज्म उसका RO. तो ROs नहीं, वो वाटर प्योरीफायर होते हैं. तो RO का मतलब है रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑन द मैकेनिज्म ऑफ विच इट वर्क्स. रिवर्स ऑस्मोसिस वो मैकेनिज्म है जिसपे वो वर्क कर रहे हैं. ठीक है, हमने कल किया था SPA में चैम्बर A है, चैम्बर B है, यहाँ पे स्पोल लगा हुआ है पिस्टन, एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं. इधर है हमारे पास सॉल्यूशन, इधर है हमारे पास सॉल्वेंट. then what will happen, the solvent molecules will start moving towards solution. तो हमने अभी क्या करना है, इसको रोकना है, प्रेशर अप्लाई करेंगे ताकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इधर ना आए. दैट प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर. बट अगर हम इफ we increase the external pressure greater than osmotic pressure, or we can say if the external pressure is greater than osmotic pressure is applied on the solution side using pressure piston, then what will happen, then the osmosis takes place in the reverse direction. तो क्या होगा, इसमें से जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे कितने चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे, और इसका लेवल क्या करेगा, राइज करेगा. तो इसमें पीछे क्या रह जाएगा, सिर्फ सॉल्यूट रह जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स विल नॉट पास. That is, solvent molecules will move from solution to the solvent across the membrane, and this phenomena is known as reverse osmosis. And in our water purifiers, only this phenomena occurs. That's how we can purify our water. Clear? With the help of purifiers. These are based on this mechanism only. Understood? तो याद रखना, वैसे ही होता है, ये होता है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ इनकी यूजेस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस के यूज़ क्या है. यूजेस, फर्स्ट वन इज ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम सी वाटर, उसको बोलते हैं डीसैलिनेशन. फर्स्ट यूज है ड्रिंकिंग वाटर बनाना फ्रॉम सी वाटर विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस होगा. ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर भी ऐसे ट्रीट होता है रिवर्स ऑस्मोसिस के. प्रेशर अप्लाई करेंगे, पानी साफ बाहर आ जाएगा, सॉल्यूट जो है, जो डर्ट है, जो इम्प्योरिटीज हैं वो पीछे रह जाएंगे. ठीक है. एंड फ्रूट जूस कंसनट्रेट, बनाने में काम आता है. जैसे होता है ना रसना, सुना रसना पाउडर फॉर्म में होता है हमेशा. आजकल मोस्टली फ्रूट जूस कंसनट्रेट्स आते हैं, पाउडर फॉर्म में आते हैं, उन्हें थोड़ा सा पानी में मिक्स करो, वो रेडीमेड फ्रूट बन जाता, जूस बन जाता है. तो वो जो कंसनट्रेट्स हैं जो पाउडर फॉर्म में होते हैं, दैट इज पैक्ड एडिंग अ सूटेबल प्रिजर्वेटिव एंड सोल्ड इन द मार्केट, दे आर मेड विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस ओनली. क्लियर? एंड दैट is for about osmosis only. And the next one is a numerical based on this osmosis, that is a 300 Kelvin, at 300 Kelvin 36 gram of glucose present in a liter of its solution has an osmotic pressure of this. We are given with the osmotic pressure of 4.98 bar, that is pi is given. We have solution, pi is given as 4.98 bar, and mass, that is WP glucose कितना दिया हुआ है, 36 ग्राम. a liter of solution, वॉल्यूम दी है हमें 1 liter, right? And if the osmotic pressure of the solution is this, if the osmotic pressure of solution is this at the same temperature, what would be its concentration? तो ये pi 1 ले लो, ये pi 2 ले लो, तो पाई 2 हमें दिया हुआ है 1.52 बार. ठीक है. नाउ ये हमारे पास हो गया 36 एंड वो कंसंट्रेशन दी हुई है हमें. हाँ जी, ग्लूकोज इन वाटर. ठीक है, ग्लूकोज लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इट्स सॉल्यूशन. तो हमारे पास फॉर्मूला होता है पाई
V इज इक्वल टू एन सी टी, ये होता है ना, पाई V इज इक्वल टू एन सी आर टी, एन सी आर टी लिख लो प्रॉपर, जस्ट वेट, एन आर टी, सॉरी प्लीज़, मैं पाई 1 ले रहा हूँ पहले, पाई 1 V इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है, टी कॉन्स्टेंट है, आर कॉन्स्टेंट है, वो पुट नहीं करेंगे, पर पाई हमारे पास फर्स्ट वाला कितना है 4.98, वॉल्यूम कितनी हमारे पास V1 दी हुई है हमें 1 लीटर, और N होता है WB अपॉन MB RT, WB इतना है, ग्लूकोज का मोलर मास कितना आएगा 180 ग्राम पर मोल, तो उसको पुट कर दो 36 अपॉन 180 इंटू RT, तो वी विल गेट व्हाट 4.98 इज इक्वल टू, ये आ गया 36 by 180 RT, मेक इट एज अ फर्स्ट इक्वेशन. Similarly, applying it on second one, we have उसमें बोला सेम टेम्परेचर, सोल्यूशन दिया हुआ है, तो वॉल्यूम V2 भी कितनी आएगी 1 लीटर आएगी. वी हैव टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ दिस, मतलब मास, वी हैव टू फाइंड द मास, WB इज नॉट गिवन फॉर द सेकेंड पार्ट. तो सेकेंड पार्ट के लिए प्रेशर दिया हुआ है 1.52 इंटू 1 आ जाएगा, सेम आ जाएगा, WB हमने निकालना है इसका सेकेंड पार्ट के लिए, और ग्लूकोज ही है 180 मोलर मास, R इंटू टी सेकेंड. So divide 1 by 2. They divide 1 by 2. Divide. So we will get what? We will get 4.98 upon 1 by 1.52 is equal to 36 upon W. So this implies that W हमारे पास आ गया 10.987 ग्राम आएगा यहाँ से, और वी हैव टू फाइंड द कंसंट्रेशन दैट इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, तो 10.987 अपॉन वी हैव मोलर मास 180 एंड इट कम्स आउट टू बी 0.061 मोलर, that is molarity आ गई. So this is all about this question and how you can solve these questions on the osmotic pressure. ये ऐसे करने हैं, आपको पता लग जाएगा अभी, तो ये इजी था. तो आपका होमवर्क है, यू हैव टू डू द सॉल्व्ड क्वेश्चन आंसर्स ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड वैन टॉप फैक्टर. वो लास्ट टॉपिक होगा इस लेक्चर चैप्टर का, वो लास्ट लेक्चर होगा नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है. So that's all for the day, beta. Thank you. Bye bye. Take care.